had made some analysis. Now this time also we have presented additional data to show what has happened in some laboratories in Jaipur. But is it a system that is only a few isolated samples given by them that you pretend to take in your presentation? If it is a system, then how many places it is getting manufactured in India? How the records are kept? How the change and analysis is presented? And then there's a drug control general. How many ask questions about how the actually the quality assurance is there? How the besides the standardization part, the quality assurance, how is stable, how long it is kept, how it is kept. Everything those questions were asked actually. They have question have been asked in the last meeting actually. So obviously the committee has to be sure about the second part. First about the disease and how this is done. Second part about how the drugs are manufactured in India, how they are kept, how they actually what is the quality assurance and all those markers which the question have been asked from you. Those all minutes have been given to you actually. Then the third part is again which is a very critical part, from the perspective. You are talking about that, these are some books which have been cited by you. Very few original work. To be very honest, even today there is only very little. I have 4 or 5 more, but that doesn't make a very serious difference. It tells you something more is better than the previous one, but nothing adequate actually. So then the next question arises. When you say you are teaching this is the way it is being taught here and here. This is where the degrees are given. Then the question arises, who certifies that? If your anatomy is being taught, where is the practical being conducted? Where is the medical college? Where is the mortuary? It is not just giving a one book actually. Then who has taught you? Who has taken the exam? Which is the benchmark? And what do you make use of that knowledge? How do you use that knowledge to classify your patients? See, these are all relevant questions which are for a scientific information. Then the scientific system must actually, because if our authorization means the government saying that you are competent enough to diagnose what the person is suffering from. You are competent to diagnose all the diseases. You are competent to diagnose, maybe in your own way, in your own philosophy, no problem. But then, how you relate that to every condition actually. So I think that these are the very fundamental questions which have been asked from you last time. People like Dr. Swastika, I saw his name today also, he is present in the meeting, he was present in the last meeting also. He gave me his own suggestions last time also. I think, are those suggestions agreeable to you? Question is, first, is anybody whom you think should be called as a doctor? Then, what is the eligibility? How you are offering that? Then the question says, how it is regulated? Then the question says again, how it links to the rights of the people who are getting treated actually. So I think these are all vital questions which those 4 groups which have been asked from you, you have to address them in your brief presentation. I hope you will be very focused on the answers to these questions only. Because the colleagues from, I think, this interministerial meeting, they are right from the Ministry of Health, ICMR, Niti Aayog, and also from the Ministry of Law, Legal Affairs. I think they are not, and then the experts are being presented. And I think in that context, I request you to be very focused in maybe 15-20 minutes presentation maximum, answering these questions only. We don't want to be going into the background, because who had showed the data of saying to have a data to use numbers. Kapil Singh ji, बंद करिए अपना मोबाइल वहाँ पे. आपको वो ऑन हो गया है. तो I think ये सारा issues आपको address करने हैं ताकि committee remains very focused in analysis of your situation. Committee had assured was very sympathetic for the last 2 meetings also. Committee has not tried to reject everything outrightly. It has given you due opportunity to present your case. I also spent huge amount of time reading your big books and the number of your documents which you presented last time also. And this time also I have gone through the entire document page by page. I will not comment as a chairman. It will not be proper for me to start comment from the beginning. I have just flagged the issues on which you have to enlighten the committee. So I think with these remarks, I welcome all the colleagues who are representing the different electrohomeopathy associations.
additions to this meeting. Of course, I welcome all of my colleagues, and I request you to very briefly present your case, that will what additional evidence in the light of the questions which were asked from you last time. Thank you very much. And दिवाली जी आप बोलेंगे या दूसरा अजय सिंह जी बोलेंगे, कौन बोलेंगे बताइए? Sir, last time those questions which is raised by the दिवाली जी ऑन कर लीजिए अपना, जो है कोई प्रेजेंट करेगा वो अपना ऑन रखिए उसको बस. respected sir members, last time all the questions which is raised by the respected seniors, today we have submitted all the answers through the mail and the PPT also. But for the deep descriptive way, Dr. Ajit Singh will describe particular each and every answer of those questions. Dr. Ajit Singh. Yes, sir. Good morning, sir. Sir, basically, we have noticed in last meetings of the IDC, there was the three main questions, basically two, which was raised, and I think that is required to understand how electrohomeopathy is different from homeopathy. So I think the matter of recognition for which we are fighting, actually it is a concept which we want to get recognition, because homeopathy system of medicine is an art of proving drug on healthy body, while in electrohomeopathy the drug is proven on the diseased body, and both science following the nature's law of similia. That's why the word homeo is there, and it is not a misnomer of a word homeopathy. And second, the question which was raised about the electrohomeopathy pharmacopoeia, and the question was this: if spagyric is given or mentioned in the GHP, then how we can correlate, or how it is we can say it is separate from the homeopathy? Because spagyric is not a field of homeopathy, and spagyric pharmacy belong to electrohomeopathy, and till now none of the spagyric proven on healthy body, and it's not a part of materia medica. And because after Second World War, Dr. Theodor Cross reintroduced electrohomeopathy in Germany in the name of electrocomplex homeopathy, and because the pattern of making dilution in electrohomeopathy also as per the decimal scale, and due to these some points, the Theodor Cross introduced his methodology of making spagyric in GHP. That's why the main method from 25th to 30th are given or mentioned in GHP, and that is also well approved by the Government of India, because GHP is accepted by the Government of India. The third question which was raised, we have not a satisfied documents related to the publications, research, everything. We admitted, sir, because whatever the data we have, that is only the clinical data, because our doctors are treating the patients around the country for a long time, and there is no any casualty till time. And because this data is so important, we have to prove how this clinical research proving our principle of science, which is the fundamental of any science, right? And secondly, we have done some extra work with the modern concept to prove the facts of our principle by performing some clinical testing on animals, toxicological study, and microbiological study, and some HPTLC, HPLC, and that data we already have given to the government. We can understand it may not be at the satisfactory level of the IDC, but sir, we need help to improve ourselves, and it was also suggested by Dr. Shankaran last time in the last meeting. If we get some help, we can improve and prove ourselves more. That's all, sir. The
fundamental question which I flagged in my remarks, based on what is written here in the presentation, you have to address them, and before I keep make the floor open to the members. See, about the drugs, for example, there were questions, what was the mode of standardization of these products, how the finished products are being standardized, how the robustness and ruggedness of the analytical methods used, how the products were labeled, shelf life, etc. So many things questions are asked here. Yes, sir. Those questions I didn't find the answer in the book, the answer given by you, the original one or also in the detailed one. Except for, you had some data presented from the one Jaipur laboratory, which told about how the POTs are taken care of, that you look at the arsenic, you look at the other things. And also the photographic fingerprints are also mentioned there. But that doesn't tell you about, the real life data of the drugs which you are using about drugs actually, which are prepared in your own way. So that data I didn't find in this actually. Basically, sir, these because the electrohomeopathy is still not recognized or supported by government authorities. The doctors and the organization which is doing practitioners of these systems is doing practice from the long back time, and the medicines are coming from the far of our country, and there is no such process or systematic or you can say this very authentic processes are there, and the established lab is not available till now in India. But every doctors which is doing practice in electrohomeopathy till now, these medicines which is coming from the outside of India, means in Germany, in the name of Spagyrics, each and every doctors know how to combine the medicine, these Spagyric, and they are doing practice and taking the result. If government supports us in that level, we 100% know that when initially these medicines are giving so much good result, and it is very helpful to the mankind, if government supports us or government agencies supports us, then the further research can be done. This is our humble request to our respected sir. Only these are actually, you are importing, the people are directly importing. Yeah. So, for this, which should be internationally recognized, and then combining in your own place. That's what you want to say? Yeah. But the medicine which is importing, there is also one lacking is there, because there is no license. Licensing authorities is not there, means authentic license is not there. These medicines comes in the name of Spagyrics or in the name of homeo mother tinctures. That is the main thing. This is the truth. जी sir. But some of our organizations is trying their best, like Sanjeev Sharma, Ajit Singh. Who wants to say answer? Intervene? Sir. Sir, I had to say something about it only. So whenever we are talking about compounding the drugs, so it means that the drug is prepared at the level of the clinic only. And second thing is the manufacturing. If you talk about the compounding the drugs, there are so many drugs which is a crude form is available in India also. I will take one scientific example for it. If you take the one example, actually our body is made by the complex organism. At the time, the so
infection will be take place. Hence, the one remedy is not sufficient to cure the disease. If you take the whole vital, if suppose the person are suffering from, नहीं, मैं आपका उत्तर वापस सुन लिया। आप जो हम एक्चुअली आपके we are not today debating the basic of the treatment. We are today just talking very specific question कि जो drugs interventions हैं। that's what I'm saying, sir. हाँ, बोलिए। Many drugs is fruit form the drug is available in even India also. So basically we see From where? सर अगर आप देखना चाहेंगे तो आप एक एग्जांपल ले लीजिए, चामामूलिया लीजिए, वेरोनिया ले लीजिए, सरसाफेली लीजिए, स्क्रोफुलोसा लीजिए, ये आयुर्वेदिक फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको अगर चाहिए तो मैं ब्रीफली आपको समझाना चाहता हूँ कि स्क्रोफुलोसा 3 में मैंने मेरे प्रपोजल में दिया हूँ कि मैंने किस तरह से रिसर्च करके हाइपोथायराइडिज्म को मैंने ना क्योर किया और हाइपोथायराइडिज्म का साइंटिफिक वर्च्यू पूरा दिया और वैलिडिटी के हिसाब से। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि वी ऑन गेट द सब्जेक्ट, हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द क्लिनिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू, तो वी गेट अ few subjects. If you are talking for research, it's required at least 100 subjects. So I given one example in my proposal also. आप देखेंगे यहाँ पे चामामूलिया it is available in India also. आयुर्वेदिक के फॉर्म में हम ले सकते हैं। और दूसरी बात है रुमा, ये जो है जिसको हम कहते हैं रियम है, रियम प्रोएक्टेनम जो कि रुबाब कहते हैं और उसको जनरल लैंग्वेज में रावचीनी कहते हैं। तो ये चीज हमारे पास अवेलेबल है और जिस तरह से वैद्य और हकीम जिस चीज से प्रिपेयर करते हैं उनको कोई बाइंडिंग दिए, वैसा सिमिलरली वी आर प्रिपेयरिंग द ड्रग्स और इन इंडिया आल्सो। तो उस तरीके से द सब्जेक्ट व्हिच आर नॉट अवेलेबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग वी गेट फ्रॉम द फॉरेन साइड। ठीक है अब्दुल रज़ाक साहब, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपका सुन लिया आंसर, हमने सभी ने सुन लिया। हमारा क्वेश्चन इस पर ये बात है बनती है कि दो चीजें बनी के इम्पोर्ट की है, कुछ चीजें स्पेयर की गैरिक फॉर्म में और कुछ जो यहाँ से अवेलेबल है उनको भी आपने उसी का प्रिंसिपल्स पे बेस कर दिया, लेकिन उसका मैंने भी आप बात सुन लीजिए, सभी के लिए उत्तर क्वेश्चन है। अगर मटेरिया मेडिका है और आपका फार्माकोपिया है यहाँ पे, तो उसके लिए बनाने का तरीका स्टैंडर्डाइज चाहिए ना, तो मेडिकल सिस्टम रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें स्टैंडर्डाइज सिस्टम चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल पर नहीं हो सकता। तो रज़ाक साहब यस सर, yes sir, that I am going to be explaining you कि we already get the coefficient method over here also. Actually अगर कॉन्वेटिव सीजर्स का आप ये देखेंगे कंसेप्ट हाइपोथेसिस, तो इट इज अ वेरी साइंटिफिक। जब हम बनाते हैं तो हमने रज़ाक साहब हमने आपसे ज्यादा पिछली मीटिंग में खुद बोला, हमने सारा हमने पढ़ रखा सारा, किसी को प्रॉब्लम नहीं उसके ऊपर। हमारा सवाल है कि उस प्रिंसिपल के ऊपर अगर वो कैसे आप अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट बनाया, वाटर एक्सट्रैक्ट बनाया, कैसे रीमिक्स किया, उसके जो उसकी जो फार्माकोपिया है यहाँ पे उसकी लिस्ट दे रखी है इन्होंने। अच्छा वो फार्माकोपिया ये हम सर मैं इंटरप्ट करना चाहता हूँ, सॉरी माफ करना। ये जो देखिए आप, ये जो मेडिसिन हमने बनाया है कोएफिशिएंट मेथड से, जिसको हम कहते हैं कि पहले शुरू में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम बॉइल करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको डालते रहते हैं यहाँ तक कि दोनों की आइडेंटिटी सेम होती है। तो ये जो ड्रग्स बनाए हुए हैं सर, सुनिए डॉक्टर साहब, ये क्या फार्माकोपिया में है आपके? हमारे फार्माकोपिया में कोएफिशिएंट मेथड है ना सर? इट इज एन कोएफिशिएंट मेथड इस वाली सिस्टम को बनाने का जो फॉर्मुलेशन आपने बनाया इसको बनाना क्या वहां पे लिस्टेड है क्या सारा? ये तो हम तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सिडर मेथड के हिसाब से हम बनाते हैं, कोएफिशिएंट मेथड के हिसाब से हम प्रिपेयर करते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ कि नहीं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम तो डॉक्यूमेंट पूछ रहे हैं आपसे। दैट मींस कि इट इज ऑल इंडिविजुअली डन, आप अपने पास खुद बनाते हैं, आपकी कोई कंट्री में बनाने की फार्मेसी का सिस्टम नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये बात बनी ना? यस सर, टिल अप टू 1948 एक्ट फार्मेसी एक्ट के अंदर जब तक मर्ज नहीं होता, हाउ इट इज पॉसिबल टू बी इन डिस्ट्रीब्यूट। और ठीक है, वो समझ गया बात, वो दैट इज अंडरस्टूड, वो हम लिमिटेशन समझ गया, वो दैट वी रिकॉर्ड दैट लिमिटेशन, हाउ टू सॉल्व दैट वी विल ट्राई टू फाइंड अ वे। लेकिन वो अभी आज का सिस्टम क्या, वो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, और मेरे तरफ से मैंने ये किया था, आपने पूछा था कि वेहिकल को डाइल्यूशन को किस तरह से आप इसको स्टैंडर्डाइज करके आप प्रूव करेंगे, तो मैंने मेरे मेथड में बताया हुआ है कि ये में हाउ टू बी प्रूव। अब्दुल रज़ाक साहब, ये क्वेश्चन इसके कमेटी ने पूछे हैं जो आप सबको सर्कुलेट किए हैं हमने। ये 2019 में हमारी मीटिंग हुई थी, जिसके बाद मिनट सबको सर्कुलेट किए हैं, मैं उसमें से रीड कर रहा था, मैं कुछ अलग क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कुछ भी, मैं तो उसी के
जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ने क्वेश्चन पूछा वो मैंने सवाल आपसे आज फिर रिपीट किया कि उसका उत्तर कहाँ है, ये पूछा मैंने। ये वाज वेरी सिंपल। यस, एनीवे आई गॉट द आंसर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। हाँ, वेरी नाइस। तिवारी जी कुछ बोल रहे हैं, आप खड़ा किया अभी भी? हाँ जी सर, फॉर दिस पर्टिकुलर आंसर आप ऑन करिए तिवारी जी अपना। sir, for this particular answer we have submitted this answer in the this proposal, and Dr. Ajit will explain deep because this is already previously expert has किस पेज पे है उत्तर बताइए, कहाँ पे उत्तर ये किस पेज पे है, वो जो दिया हुआ है किस पेज पे है उत्तर बताइए। जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया उसमें कहाँ पे है ये बता दीजिएगा। नहीं युक्का मैं अपने वेलेट को दिक्कत नहीं, आप अगर आपने ये सब चीजें इसमें रिटर्न में दे रखी, मैंने तो एक एक पेज पढ़ा, मुझे नहीं मिला इसका उत्तर। मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उसका क्लियर आंसर नहीं मिला मुझे। अगर प्रोफेसर भाई के गुप्ता प्रेजेंट है, अगर उनको इसका उत्तर मिला इस डॉक्यूमेंट से, वो बता रहे हैं। प्रोफेसर भाई के गुप्ता जी, थैंक यू। भाई के गुप्ता जी इसको ऑन कर लीजिए। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर गुप्ता आपने वो ऑन कर लीजिए वो। अब आवाज आई सर? हाँ अब आ गई, अब आ गई। और मैं ऑडियो भी वीडियो भी ऑन है। आपकी आवाज नहीं आई सर? मैंने ऑफ कर दिया, अब आ गई। हाँ अब आ गई सर, मैंने ऑफ कर दिया था बिल्कुल। हाँ पर मैं कहीं फंस गया था, मैं अभी मैंने ज्वाइन किया था। आई विल आप मीटिंग कंटिन्यू रखिए, मैं समझ में आएगी मैं आपको आई विल इंटरेक्ट। नहीं डॉक्टर साहब, सवाल इसका हमारा ये था, इन्होंने अभी क्या एक्सप्लेन किया इन्होंने कि जो हमने जो ये ड्रग कंट्रोलर जनरल का जो सवाल था ड्रग्स के ऊपर कि इनकी ड्रग्स का बनती कैसे है, कहाँ स्टोर होती है, कौन इनको सप्लाई करता है, इन्होंने कुछ जानकारी इन्होंने लिस्ट दी है थोड़ी सी। लेकिन आज इन्होंने क्या क्लैरिफाई किया कि ये सर्विस पैंक्रिक फॉर्म जो है जो कोहैबिटेशन मेथड से बनती है, तो वो दोनों ओरिजिनल मंगवाते हैं वहां से और सारे इनके प्रैक्टिशनर उनको अपने हिसाब से मिक्स करते हैं और उसको ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। और कुछ जगह लोग इंडिया में भी कुछ देखो हमारे कोलीग थे, उन्होंने कहा कि इंडिया में भी इसके आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस हैं जो उसके सेम चीज अवेलेबल है। अच्छा, अल्कोहल एक्सट्रैक्ट अवेलेबल, तो वाटर एक्सट्रैक्ट अवेलेबल है, तो उसको भी यूज कर लेते हैं अपनी मिक्सिंग करने के लिए। ये तो दे यूज दिस पायरिक जो मेन टेक्निक है जो कोहैबिटेशन वाली, उसको यूज करते हैं ये लोग और उसमें अल्कोहल एक्सट्रैक्ट और दूसरे एक्सट्रैक्ट को मिक्स करके वाटर एक्सट्रैक्ट को मिक्स कर प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिक्स करके ड्रग बनवा लेते हैं ये, और उसको ही इस्तेमाल कर रहे हैं बाई एंड लार्ज। इनकी कोई स्टैंडर्डाइज सेंटर सिस्टम नहीं है क्योंकि सरकार ने इनको अप्रूव नहीं किया, तो इनको सेंटर सिस्टम बनाने का मौका नहीं मिला है। ये इंपोर्ट करते हैं, बना मिक्स करते हैं और कुछ लोगों को मिक्स कर देते हैं चीजों को लेके। जो तो हमने इनसे क्वेश्चन पूछा कि जो मटेरियल मेडिका है आपका और जो आपकी फार्माकोपिया है, जो डॉक्यूमेंट आपने दे रखे हैं उनके अंदर, तो वो क्या डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली होता है, तो उसको रेगुलेट कैसे करेंगे? तो दैट्स अ क्वेश्चन आई आस्क्ड फ्रॉम देम। वो कहते हैं हमने उत्तर दे रखा है इसका। अब वो मटेरियल मेडिका की कुछ किताबें इन्होंने लिस्ट की हैं, फार्माकोपिया की लिस्ट की है इन्होंने किताबें। वो किताबें हमें मालूम नहीं आप तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, मेरे पास नहीं है। हाँ, आपके पास नहीं आई है। लेकिन देखिए ये उत्तर जो इन्होंने उत्तर दे रखे हैं अक्सर क्वालिटी इंश्योरेंस के, और जिसमें कि देखते हैं प्योरिटी है या नहीं, उसके क्रोमैटोग्राफ देखते हैं। ये कुछ लोग इसमें से कर रहे हैं, सारे नहीं करते हैं। तो आई थिंक वो ये सवाल आपने इनसे पूछा, आप इसमें नजर मार लीजिए, उसके बाद यू कैन कम बैक फॉर द योर कमेंट्स एक्चुअली डॉक्टर साहब। ठीक है सर। हमारा एक जनरल कमेंट ये का देखा वो ये कि जो हमें दो चीजें चाहिए। अगर मान लीजिए ये दवाई जो बना रहे हैं वो एक स्टैंडर्डाइज कहाँ पे बनाते हैं वो उन्होंने नहीं बनाई, वो टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं मिली या लोग अभी इतना डेवलप नहीं हुए हैं, वो अनदर थिंग है। लेकिन एक हमारे पास एक मेथड होना चाहिए कि अगर हम इस पद्धति को अप्रूव करें और सिस्टम डेवलप करें कि यहाँ पे ये इसको एस्टिमेट कर सकते हैं या इसको वैल्यू कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या कोई इसके पास इस फॉर्मेट है
कि जिसको कहें कि हाँ ये इसके पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर ये खरीद करनी चाहिए, इतने परसेंटेज, ये मिक्सिंग का प्रोसेस है, ये स्ट्रेटेजाइजेशन का प्रोसेस है। अब वो प्रोसेस डेवलप करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना एक अलग चीज है, लेकिन अगर वो पद्धति का स्ट्रेटेजाइजेशन का प्रोसेस नहीं है तब बड़ा गड़बड़ है। ये दिस इज द पॉइंट। अभी ऐसा जी सर जी ये जो प्रोफेसर गुप्ता का सवाल है, ये बड़ा वैलिड सा क्वेश्चन है। जैसे आपका जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्टर साहब को एक कॉपी भेजेंगे आप ऑफिस के बाद, अभी जो आपने जिनकी बोला है, जो फार्माकोपिया है जिसके अंदर ये सारी प्रोसेस लिखी गई है, और जिसको कि अभी लोग फॉलो करते हैं, चाहे प्राइवेटली फॉलो कर रहे हैं या थोड़ा सा कमर्शियल लेवल पे फॉलो कर रहे हैं लोग, चाहे क्योंकि सिस्टम नहीं है, क्योंकि रेगुलाइज सिस्टम नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, लेकिन जो फॉलो करते हैं वो डॉक्यूमेंट के अनुरूप क्या उसके अंदर सब चीजें डिफाइंड है, इसके लिए 200 की 200 चीजों के लिए ये क्वेश्चन है इनका। जी सर डॉक्टर अजीत will explain in this regard. अजीत बोलिए। यस सर सर जनरल फार्माकोपिया को फॉलो करके पिछले 9 साल से सर हम अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल यहाँ पे मेडिसिन बना रहे हैं, जिसमें हमने हाइड्रो एज वेल एज अल्कोहलिक कंटेंट्स को निकाला है पर्टिकुलर रेशियो एज पर इट इज मेंशन्ड इन द जीएचपी, और उसको हमने टोटली प्रोसेस किया एंड देन वी गो फॉर द क्लिनिकल टेस्टिंग HPLC and all other things to check its efficiency and safety, and we also got the clinical data. So this whatever doctor asking, we have the format in according to which जो किताबें आप फॉलो कर रहे हैं अभी, फॉरेन वाली भी और इंडियन पब्लिकेशन भी जिनको स्टैंडर्ड मान रहे हैं, जो अवेलेबल है कंट्री में, ठीक है, उनकी एक कॉपी, ठीक है, एक कॉपी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड साइंस को पहुंचा दीजिए, वो प्रोफेसर भाई के गुप्ता को दे देंगे, ठीक है सर, उससे वो डॉक्टर सेटिस्फाई हो जाते हैं कि वो ड्रग रेगुलेशन के लिए करेक्ट सिस्टम है, एडिक्वेट सिस्टम है, so then he will make the recommendations on that. Okay sir, thank you sir, sure sir, we do that. Yeah, okay, good. Mr. Patwardhan, हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ। नहीं, मुझे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, और जो लास्ट टाइम जो हमने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे थे उसके आंसर्स मुझे नहीं दिख रहे। एक क्वेश्चन हमारा ये भी था कि ये जो आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका पब्लिक को बेनिफिट क्या मिला है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कहाँ है, इसका आपने जो, और हम लोग रिसर्च की बात तो बाद में करेंगे, पहले जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसकी जो एविडेंस है वो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की है क्या, और उसका कौन से कंडीशंस के लिए इसका ज्यादा प्रभाव है, ये कोई डेटा है क्या, ये हमारा लास्ट टाइम भी क्वेश्चन था, उसके बारे में मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया अभी। और तीसरा जो है वो साइंटिफिक रिसर्च कुछ तो भी होना चाहिए, तो इसके बारे में भी मुझे यहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया। वापिस इसमें जो पब्लिकेशन उन्होंने दे दी है वो सभी ये प्रेडेटरी जर्नल्स के पब्लिकेशन है, उसका कुछ फायदा नहीं है, वो कोई मायने नहीं रखते हैं। तो पीयर रिव्यूड अच्छे जर्नल के कोई पब्लिकेशन मुझे अभी जो दिया है डॉक्यूमेंटेशन उसमें से नहीं दिखा है। थैंक यू सर। थैंक यू पटवर्धन साहब, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक वो ये सवाल मैं इनको भी रिलेटेड करूंगा। तिवारी जी सुनिए, मैं जो प्रोफेसर पटवर्धन ने कहा मैं इसको जरा आपको एलेबोरेट कर देता हूँ। देखिए, आप समझ क्योंकि आप तिवारी जी कई सालों से इनके बिहाफ पे इस कॉज को परस्यू कर रहे हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आई रियली वैल्यू योर कंट्रीब्यूशंस। थैंक यू सर। लेकिन जो अभी जो बात बन रही है सारी की, एक तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कान मैती वाले हैं, उसके बाद इंडिया के अवस्थी साहब के हैं, एनएल सिन्हा साहब के हैं, दूसरी जो अच्छी किताबें छपी हैं, बेसिकली दे आर रिपीटिंग द सेम व्हिच इज डन इन द अब्रॉड एक्चुअली। वो सब पटवर्धन जो ये कह रहे थे, एक सवाल पूछ रहे हैं, वो बड़ा वैलिड है। अगर मान लो क्योंकि वहां उस कंट्री से तो कोई हार्डली कुछ पब्लिकेशन नहीं आई है, अब ये हमारा जो कंट्री है वो तो 1800 की पब्लिकेशन है, 1900 150 साल पुरानी है।
आज के कॉन्टेक्स्ट में हमारे कंट्री से अगर मान लो किताबें नहीं है, आपके कोई जर्नल नहीं छप पाए, जर्नल में पेपर बड़े कम छप पाए, कोई बात नहीं, वो बात उसके मुद्दे पर हम आते हैं, लेकिन वो साइंस के लिए जरूरी है। वो अगर आपके पास कोई यहाँ के डॉक्यूमेंट्री पब्लिश किताबें भी हैं जो यहाँ के डेटा को दिखाती हैं कि ये वाले पेशेंट्स, मतलब 10 जगह 20 जगह 40 जगह के जो आप इतने सारे मेडिकल कॉलेज भी है आपके बहुत सारे, अच्छा उनके अंदर इतनी सारी चीजें, इतने पेशेंट ट्रीट किए गए जिनका ये सिम्टम थे, ये सिंड्रोम थे, जो आप ये वाले स्क्रोफुला कह रहे हैं, एक दूसरे कैंसरस फॉर्म कह रहे हैं, तो आपके मियाज़न के हिसाब से वो क्लासिफाइड है इस ग्रुप में, और उनको ये चीजें दी गई, वो ठीक हो गई। वो पब्लिश इवन किताबें भी हैं डॉक्यूमेंटेड, ठीक है, जिसको भी कोई कमेटी जाके उस जगह का डेटा वेरीफाई कर ले, ठीक है, तो वो भी एक प्रूफ हो जाएगा कि ये एस्टेब्लिश चीज है जिसको वेरीफाई किया जा सकता है। ये सवाल पूछना है डॉक्टर साहब ने पहले भी बड़ा क्लियरली बोला था जब ये थर्ड मीटिंग हुई थी तब भी है, तो आई थिंक इज रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन है, सच्चाई में उसका उत्तर नहीं है आपके पास अभी भी जो आपने 7-8 पब्लिकेशन दिए हैं उसमें मैं बताता हूँ कि एक तो जो रैट वाला जो है रैट में टेस्ट करके दिखाया, वुंड हील हो गया। अब वो एक सिंगल सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट से उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो प्रॉमिसिंग रिजल्ट है। अगर वो नॉर्मली में भी अगर कितने लोग अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, जिस ड्रेसिंग करने से बगैर कोई ड्रग लगाए तो भी हो जाते हैं, क्योंकि बगैर दवाई लगा के वुंड ठीक हो जाता है। इन्फेक्शन कंट्रोल होती तब ड्रग चाहिए। अब दूसरी चीज जो है, जैसे डेंगू के ऊपर पेपर लिख दिया और एक सिंगल केस रिपोर्ट है एक पेशेंट की और अंदर खूब सारी कहानी लिख दी। अच्छा डायबिटीज के ऊपर, जेस्टेशनल डायबिटीज के ऊपर बोला तो फिलॉसफी उसमें लिख दी पूरी। अच्छा 2-3 रिव्यू पेपर छाप दिए। तो ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन यहाँ से स्पेटी के बेसिस के ऊपर किसको बेनिफिट मिला, किस टाइप के पेशेंट से जो दूसरे से ठीक नहीं हुए, वो डेटा नहीं है अभी तिवारी जी। तो अभी भी आप वो सिस्टम है, कैसे आप इसको इंप्रूव करेंगे? मतलब अब इतने सारे मानो सैकड़ों लोग आपके पास है, सुझाव है आपको, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ आपको। अगर इतने लोग इकट्ठे वॉलंटियर होकर जितनी सारी आपकी एसोसिएशन बनी हुई है, अगर कोई कंट्री का स्टैंडर्ड जर्नल चलता है जिसमें कि मेडिकल वाले भी एमिनेंट लोग होते मेंबर, अच्छा दूसरे आयुर्वेदा वाले भी होते, आपके भी होते, अच्छा तो उसकी क्वालिटी वेरीफाई हो जाती, क्लिनिकल डेटा की भी हो जाती। आज भी उसके किए बगैर चाहता है नहीं तिवारी जी, चाहे हम क्या रिकमेंडेशन कर पाएंगे नहीं, एक बार और हियरिंग करके देंगे रिकमेंडेशंस, लेकिन अल्टीमेटली वो डेटा किसी स्टेज पे चाहिए होगा। मतलब एक विश्वास पे नहीं चल सकता, क्योंकि जो लीगल चीज है वो विश्वास पे नहीं है अकेले, लीगल चीज में तो कागज चाहिए। तो उसमें हमने आपको 2-3 बार में पहले भी क्लियर की बात कि वो उस रास्ते पे बगैर चले कोई रास्ता है नहीं रियलिटी में, चाहे वो किसी भी पैथी को रिप्रेजेंट करे। देखिए हम आपको आज बताएं कि इवन जो पुरानी पैथीज के ऊपर इतने ड्रग ट्रायल छप गए, इवन आपके जो आयुष सिस्टम्स के ऊपर भी सैकड़ों में आ गया नंबर अभी, लेकिन उनकी ओरिजिनल किताबें थी। आपकी इंडिया की भी ओरिजिनल डेटा हो, ओरिजिनल एक्सपीरियंस हो, तो उसको हम डॉक्टर पटवारी साहब बिल्कुल ओपन माइंड से करें कि उसको भी हम कंसीडर करने को तैयार हैं। साइंस तो करनी ही पड़ेगी एक स्टेज पे, लेकिन ये वाला भी डॉक्यूमेंट है तो उसका भी वैल्यू है। तो आई थिंक आप उसका भी उत्तर ढूंढिए, अगर कर सकते हैं तो दीजिए प्रोवाइड करके। सर may I answer sir? और कोई लर्नेड कोलिग्स और मेंबर सर कोई क्वेश्चन पूछेंगे? सर मैं आंसर सर मैं बोलूं क्या? हाँ तिवारी जी बोल रहे हैं, पहले रजक साहब, उसके बाद आप बोलिए। तिवारी जी बोलिए। सर जैसा कि आपने कहा बहुत ही बिल्कुल सही है, उसी के अनुरूप में चला। अभी जो भी डायरेक्शन दिया गया था आपके द्वारा पिछली मीटिंग में और एक्सपर्ट्स के द्वारा, हमने इसमें अभी जो लेटेस्ट उड़ीसा यूनिवर्सिटी से एक इसमें ट्रायल हुआ वो भी हमने इसमें लगाया है। अभी हमने सप्लीमेंट्री प्रपोजल जो दिया है, और जो टेस्टिमोनियल्स हैं पहले भी दिखाए थे लेकिन इस बार लगाए हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन टेस्टिमोनियल्स को हम मतलब एक ऑथेंटिक, जैसे सर ने बताया था, पटिकरन साहब ने डायरेक्शन दिया था कि दिस टाइप ऑफ टेस्टिमोनियल इज नॉट अप्रूव्ड। आप इन सारे टेस्टिमोनियल्स को किसी ऑफिशियल गजट में डाल के या उसमें दीजिए, तब कहीं जाके इसको, नहीं तो कोई भी अपने घर पे भी कर सकता है या क्लिनिकल ट्रायल में उसका डेटा नहीं एप्रोप्रिएट हो सकता। तो सर हमारा यही रिक्वेस्ट है कि ये सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है।
अब यदि कोई डायरेक्शन हमको गवर्नमेंट अथॉरिटी से मिल जाए तो ये जितनी भी हमारी स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर अपना वर्क करना शुरू कर देगी। मेरा ये रिक्वेस्ट है सर कि है सब कुछ लेकिन सब अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमको एक बॉडी ऐसी चाहिए जो गवर्नमेंट उसको हैंडल करे, एक्सपर्ट हैंडल करे, तो ये सारा डाटा प्रॉपर आ जाएगा। थैंक यू सर। मैं सर से ये कहूँ डॉक्टर प्रदीप से कि गवर्नमेंट की बॉडी इसको ऑर्गेनाइज नहीं करेगी। हमको आपके इतने जो आपने एक बनाया है एसोसिएशन या जो हम कह रहे हैं कि जिन सब लोगों ने मिलकर प्रपोजल लिखा, तो ये तो एक आपको ही डॉक्यूमेंट या एक केस बिल्डअप करना पड़ेगा जिसमें कि आप कहेंगे कि ये हमारा लिटरेचर है, ये हमारा साइंटिफिक एविडेंस है जिसमें इतने पब्लिकेशन है, इतने इंटरनेशनल जर्नल में है, इतने नेशनल जर्नल में है और इतने हमारे अपने हॉस्पिटल के जर्नल में है, और ये हमारी बुक्स हैं जो कि यहाँ के ऑथर्स ने लिखी हुई हैं, ये हमारी बुक्स हैं जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा जो डॉक्टर पटवर्धन ने कहा, आपको ये सब मिला के एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए कि हमारे कंट्री में इतने सेंटर्स में इतने हॉस्पिटल्स हैं और इतने फिजिशियंस इसमें हैं, इनकी क्वालिफिकेशन ये है और ये किस तरह के पेशेंट ठीक कर रहे हैं, उनका रिकॉर्ड यहाँ पे है। तो ये गवर्नमेंट के डायरेक्शन में तो नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट तो अभी इसको रिकॉग्निशन देने की सोच रही है, लेकिन जब ये आपकी तरफ से प्रपोजल में आना चाहिए जो कि इस प्रपोजल में नहीं दिख रहा, इस सारे डॉक्यूमेंट में एनीडोटल फोटोकॉपी है कि किसी ने एक ठीक हुआ, किसी का एक प्रिस्क्रिप्शन है, किसी का, तो ये इससे साइंस का एविडेंस बिल्डअप नहीं होता, केस बिल्डअप नहीं होता है। ये मेरा कहना है। साहब बोलेंगे। थैंक यू। जी, मैं पहले ही आपको बता दिया था कि साइंटिफिक वैलिडिटी के लिए हमको सब्जेक्ट्स की जरूरत है और इंडिविजुअल लेवल पे इट्स नॉट पॉसिबल टू बी सीन। अगर आपको चाहिए तो मैं एक लाइव सामने पेशेंट मेरे बताता हूँ आपको, जो कि इंट्राक्रेनियल हेमोरेज था, पैरालाइज था और एम्पुटेशन पैर की बात किए हुए थे और मेरे सामने पेशेंट बैठा हुआ थी, तो उसको आई ट्रीटेड विद द दिस ड्रग्स ओनली। So my question is that previously I talked about this only and I signed my document to it। कि वहाँ पे बोलने का मतलब ये कि जब तक आप डेटा एनालिसिस के लिए या डेटा कलेक्शन के लिए साइट अगर आप वहाँ से कुछ डेवलप करते हैं गवर्नमेंट से, तो इट इज इजी वे टू सबमिट और सबको ये जितना बांटने का जैसा मैं आपको मैं थोड़ा सुझाव दूंगा सर। ये शुरू से डिबेट चल रही है, ये जितने अब तक जो देखिए क्या होता है, सरकार एक चीज के एक लेवल पे पिक्चर में आती है जब उनको लगता है हमें जिम्मेवारी संभालनी है। अच्छा, तो एक वो सिस्टम मान लो रिकॉग्नाइज होता है या सेमी रिकॉग्नाइज होता है और ये पता लगता है कि ये इतना हम आपको मॉनिटर करेंगे, इतना मदद करिए, इतना आप जनरेट करिए, उसके बावजूद भी काम लोगों को ही करना है। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर इतने सारे लोग ट्रेंड हुए, इतने लोगों को डिग्री दी या डिप्लोमा दिया, वो प्रैक्टिस में बैठे, अच्छा आप लोगों को वॉलंटरी कोई एसोसिएशन बनी हुई है ऑलरेडी, अच्छा उसमें वो पेपर प्रेजेंट हुआ, टोटल मतलब पता लगा इतने कश्मीर से किए, इतने कन्याकुमारी से ठीक किए, इतने कलकत्ता से किए, इतने इससे किए, ये इस वाले प्रोफाइल के डिजीज, इस वाले मियाजम वाले इतने लोग इस वाली ट्रीटमेंट के लिए, इस वाली कंडीशन के लिए ट्रीट हुए और वो ठीक हो गए, ठीक है। तो वो कलेक्टिव डेटा भी आपके 20 आदमी 50 आदमी इकट्ठे हो गए जिनका के और ऑथेंटिकली कोई भी वेरीफाई कर ले डेटा को जाके कभी भी, तो वो वाले अगर वो डेटा होता वो भी डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। देखिए जब तक कि जर्नल बने, जब तक रिकॉग्नाइज करे, अब ये एफर्ट सरकार कभी नहीं कर पाएगी। अभी भी मेडिकल कॉलेज में सरकार खुद थोड़ी करती है, वो तो प्रोफेसर वही लोग करते हैं, चाहे प्राइवेट के हो या सरकार के हो। सर आई गिव सम इंटरप्शन फॉर इट ओनली कि रिसर्च जो होता है ये कहना मास्टर डिग्री पर हुआ जाता है, लेकिन ये जो ग्रेजुएशन लेवल पे जबकि वो लेवल पे आप पेंटिंग की एविडेंस मान लें, रिसर्च की बात बाद में करेंगे, अभी तो हमें पेंटिंग मैं बोलना चाहता हूँ 1971 में भी इवन फॉर द होम्योपैथिक दे गिवन व्हाट्स द बेसिस लॉन्ग क्लिनिकल एक्सपीरियंस के ऊपर ही उनको दिया गया। कोई मामले अभी तो 19 एक्सपीरियंस के बेस पे 1971 में दिया गया था सर। ये 1971 में खाली लॉन्ग टर्म इंडिविजुअल नहीं था।
ये सबका जमा किया गया था इंडिविजुअल्स का, इंडिविजुअल जमा करके गवर्नमेंट ने। देखिए डॉक्टर प्रचुर जो कह रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि आप मॉलिक्यूलर बेस पे रिसर्च करिए या आप एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च करिए, लेकिन आपको ये तो करना पड़ेगा कि आपने जितने मरीज जिस बीमारी के जहां जहां ठीक किए हैं उसको कंपाइल करके आप एक फॉर्मेट में लाके बताएं कि हमारी स्ट्रेंथ जॉइंट्स की है, हमारी स्ट्रेंथ आपने अभी कहा हेमरेज की है, हमारी स्ट्रेंथ इन्फेक्शियस डिजीज है, हमारी स्ट्रेंथ ये है क्योंकि हमने इतने पेशेंट दिल्ली में ठीक किए, इतने पेशेंट कन्याकुमारी में ठीक किए, इतने हम इस और ये हमारे एविडेंस है ठीक होने का, ये हमारा डेटा है। वो हो सकता है डेटा रिसर्च मोड में इतना तगड़ा नहीं हो, हम उसको मान लेंगे, लेकिन हमारे पास तो डेटा तो ये कोई नहीं मानेगा डॉक्टर साहब कि एक पेशेंट आप ले आए, आपने कहा देखो जी ये पेशेंट ठीक हो गया। Yes sir, yes sir. That's what I have to say sir. The individual sir, individual that's the law. जब तक unless and until the government provides चलो ठीक है, आपकी बात सुन ली आपने, ठीक है। One patient is not the evidence of the system. For yes, I have to be said this only. you have to have a systematic review. कि आप कैसे पेशेंट ठीक हुए हैं। एक पेशेंट है वो एनेक्डोटल हो सकता है, वो it is a case report, but when there are several case reports, it's make a case for the evidence. तो आपको इस तरह के आपने कहा कि हमने डर्मेटाइटिस ठीक किया, लिकोरिया ठीक किया, या आपने कहा कि हमने कैटरेक्ट ठीक किया, anything. One patient is not in, is a case report. Yes, yes, absolutely sir. Several cases. That's a big clinical, sir. Clinical base पे जब हमको ह्यूज ऑफ पेशेंट नहीं मिलता, how it will possible? Unless and until OPD hospital. But is that one case does not make a case for the evidence. One case is a case report, and when there are several case reports of such type, then this becomes an evidence for the system. ये रिजल्ट साहब आपको लास्ट उत्तर इस क्वेश्चन को मैं क्लोज कर रहा हूँ, इसके बाद डिस्कशन, क्योंकि आपने बार-बार एक्सप्लेन कर दिया, पिछली बार कर दिया, अभी प्रोफेसर गुप्ता ने भी किया, पटवर्धन साहब ने भी किया। ये आप 1920 से ये कानपुर में और यहाँ पे प्रैक्टिस होम्योपैथी की शुरू हुई थी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, और अब 100 साल के इतिहास में, और अब आपके इतने सारे लोगों को डिग्रियां दे रखी हैं। अच्छा, इतने सारे लोगों को अभी रोका नहीं गया प्रैक्टिस करने से, क्योंकि हमें 2010 में मैं ही सेक्रेटरी था जो हमने ऑपरेट किया था कि रोक नहीं रहे हम, ठीक है। हालांकि अभी मदुरई ब्रांच की वो भी है रिकमेंडेशन के जो सिस्टम रिकॉग्नाइज किया वो बंद क्यों नहीं करते, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं हमको, हम नहीं कह रहे कुछ इसके ऊपर, क्योंकि मैं ऑब्वियसली नहीं हूँ आज, तो मैं सिर्फ आपको सरकार ये कैन गिव यू गाइडलाइंस ओनली, लेकिन जो सिस्टम को रिकॉग्नाइज करने के लिए डेटा चाहिए, वो अगर आपने इतने 100 साल में इतने सारे लोगों ने इकट्ठा किया डेटा, अभी भी मान लो आपके इतने प्रोमिनेंट लोग हैं, तिवारी जी ने इतनी मेहनत करी है इकट्ठा करने में, तो वो हर एक, क्योंकि हर कोई 2 महीने में बैठ के, आज तो वीडियो के हिसाब से वैसे मीटिंग हो जाती है, फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है, तो प्रॉपर डेटा को कंपाइल करके डॉक्यूमेंट क्यों नहीं छापते आप? आपकी बात को इज्जत करते हैं, वी रिस्पेक्ट एवरीथिंग, केस रिपोर्ट की अपनी इज्जत है, प्रोफेसर गुप्ता ने कहा, उसके जब कठिन केस सीरीज बनती है, फिर इकट्ठा डेटा पूरे कंट्री वाइड इकट्ठा हो गया, तो वो उसकी ये क्योंकि जनता ने आपके लोगों को इतने दिन मौका दिया है, इसके बीच कुछ ना कुछ फायदा लोगों को जरूर होता होगा, ठीक है। तो हम आप तो ये मान के विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप तो क्यों समय लगा रहे हैं हम लोग, इसलिए समय लगा रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि आपकी एविडेंस ठीक से प्रेजेंट हो तो जजमेंट आपके ऊपर प्रॉपर आए। समरली जैसे 2003 में रिजेक्ट कर दी गया आउटराइटली, हम वैसे नहीं कर रहे। 2003 में एक कमेटी में खत्म हो गए थे आप। आज मैंने भारत आपके साथ बरात आए हैं और इस कमेटी में भी 4 साल लगाए हैं, और अब 2.5 साल से हम यहाँ भी सुन रहे हैं आपको। तो ये कमेटी ये इतनी पॉजिटिव है कमेटी, जो आपको आपकी बात को दिखवाने की कोशिश कर रही है। हम आपको समरली रिजेक्ट करना होता तो 2003 की तरह आप 2018 में गुड बाय कर देते, हमने ऐसा नहीं किया किसी ने। तो ये बात आपका विश्वास नहीं है, इट्स नॉट अ लैक ऑफ फेथ, इट इज हाउ इट शुड बी प्रेजेंटेड सो दैट यू नो टुमारो वी पास द जजमेंट, वी विल द बेंच ऑलरेडी रिकॉर्डेड, दिस बेंच ने ये जजमेंट पास करी। तो हमारी हम भी जजमेंट के आधार मांग रहे हैं ना आपसे। अगर नेगेटिव होते तो कभी नहीं बंद कर देते, 2 साल पहले एक को टाइम लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये बोलिए सवाल, वी आर नॉट क्वेश्चनिंग यू, वी आर आस्किंग यू टू
be presenting in a proper form, जो हम 2-2.5 साल से यही बोल रहे हैं. अभी भी हम आपको ये आज नहीं चैप्टर क्लोज करें, हम एक मौका और दे देंगे आपको इसके ऊपर. ठीक है. ये सर मैं बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से रिकॉग्नाइजेशन मिला है कभी बाद में करेंगे. अभी लेट मी टॉक टू द मेंबर्स नाउ. ठीक है. दर्शन सेंटर साहब, दर्शन सेंटर जी भी हैं, आप बोलिए साहब कुछ. No, I have been hearing the whole thing and I agree with the way you have concluded it. So I have nothing to add further from what you have so clearly explained. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Director NIATM. Log off कर दीजिए. नहीं बिल्कुल हम आपको सुन रहे हैं ठीक ठाक. बोलिए. Are you getting my voice? Yeah, we get the face and voice both. Already you have narrated all the things, but I have one issue to be mentioned, particularly the preparation of medicine. I have gone through all the 8 papers they have sent here, and the procedure they have mentioned, वो सब गलत है procedure. And that's why the validation of the preparation of medicine is required. One is the clinical aspect which you have told already, but another thing is the preparation of the medicine. And what they are claiming and what they are stating here is actually reversed. Yeah. The four methods I have read very carefully, and then what the methods we are following for last so many years, and here their methods are so complex and so compiled in such a manner that it is meaningless actually. And in that case, they prepare the medicine. If this is the way of preparing the medicine, then there is a question how the medicine is working. So it needs to be validated, and my suggestion is they can contact 1 or 2 good laboratories to validate or to go for the preparation of the medicine in a proper manner, because they have mentioned about 4 extracts: water extract, hot water extract, fermented extract, and roasting or salt extraction. A hot extract undergoes fermentation. I cannot able to go for fermentation, and the methodology they have mentioned is wrong also. So if they are preparing the medicine here, it's a questionable scientific procedure actually. ये तिवारी जी जो डॉक्टर साहब डॉक्टर चट्टोपाध्याय का जो ऑब्जर्वेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और क्योंकि इट रिलेट्स टू अगेन बेसिक क्वेश्चन ऑफ व्हाट डॉक्टर जनरल आस्क्ड कि अगर ये प्रिपरेशन का मेथड, तो पहले हमने आपसे सवाल पूछा कि जो आपकी फार्माकोपिया की किताब है उसमें डिस्क्राइब्ड है, तो और वो ही मेथड आप यूज कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी एश्योरेंस कैसे है कि उसके अंदर से जो फाइनली बना वो क्या बना. क्योंकि देखिए ओरिजिनल जो आपकी कोहैबिटेशन की प्रोसेस है और जो क्रॉस की भी थी ओरिजिनल मॉडिफिकेशन, उसमें आपका एक वाटर एक्सट्रैक्ट है, एक अल्कोहल एक्सट्रैक्ट है, उनकी दोबारा से रीमिक्सिंग इन प्रॉपर प्रोपोर्शंस, और उसको लेके आप अपनी और अलग टाइप की इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो, ब्लू येलो जो भी आपको लगता है कि ये पावर बनेगी, तो वो फिलॉसफी तो छोड़िए कैसी बिजली बनेगी वो तो बात की बात है, लेकिन इसमें अगर देखना है वो एचपीटीएलसी से देखना है, एचपीएलसी से देखना है, तो क्या दिखेगा उसके अंदर. ठीक है, क्या व्हाट विल द इंग्रेडिएंट्स आफ्टर दैट. ठीक है, वो उसके फिंगरप्रिंट क्या होंगे, और ह्यूमन में जब यूज होती है वो नेक्स्ट बात आई उसकी इफेक्ट क्या है वहां पे. लेकिन ये जो चट्टोपाध्याय ने क्वेश्चन पूछा है वो आपका वो उत्तर भी चाहिए साथ में कि ये वाली एक करने के बाद जो आपने जैसे जयपुर की लेबोरेटरी का डेटा दे रखा है तो सिर्फ कुछ के क्रोमैटोग्राम है. ठीक है, लेकिन बाकी दवाइयों का क्या करते हैं आप इंडिविजुअल लेवल पे क्या करते हैं. ठीक है, ये सब आपको देना पड़ेगा. तिवारी जी बोलिए. सर अभी जो joining us and spending time with you at such a senior level and being so busy. So I couldn't believe अभी धन्यवाद आपको से बोलते हैं जाना मत है वडवंदर साहब तो बाइक करके really I am here. सर मेरा ये निवेदन था कि till now the data which is available and through the government authority, with the help of government authority in the Jaipur, because to investigate or to go through the research work in this particular 1-1 medicine, it is very costly. That is why the work which is done previously in the Jaipur, Rajasthan,
those data we have put out, and the rest of that we are collecting ourselves, means all the doctors is collecting, because one investigation or some slides should be taken 5 lakhs or 2 lakhs rupees. It is very costly, means HPTLC करना हर एक की. अभी जो प्रिपरेशंस लोग यूज कर रहे हैं वो अपने सिर्फ क्लिनिकल तजुर्बे से कर रहे हैं जी. वो दैट मींस उसकी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए उनके पास ना तो पैसा है उतना करने के लिए, ठीक है, अच्छा ना ही उसका प्रूफ दे सकते हैं. लेकिन मेरा थोड़ा सा जो आपको एक सुझाव है, थोड़ा सा जो कुछ आपके अच्छे से एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, मान लो जिनके पास थोड़ी की क्षमता है relatively, you see, I've seen many of your people well qualified in other biological sciences, some of them in medical people also. तो अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ ड्रग टेस्टिंग की कुछ लेबोरेटरी से कुछ सैंपल डेटा, एक जयपुर का डेटा एक एग्जांपल हो गया, अगले कुछ दिनों में यू ट्राई टू फिश आउट के कलकत्ता में किसी ने कुछ किया है, किसी दूसरी जगह पे किया है, ये जो आपके फार्माकोपिया में लिखा है उसी मेथड से चाहे आपने घर पे भी बनाई, लेकिन कुछ लोगों ने तो टेस्ट किया, दे फाइंडिंग रिप्रोड्यूसिबल द सेम, ठीक है. It may be a research lab, it may not be a very expensive about the GMP lab actually. It will be a research lab also. वो भी आपका फिंगरप्रिंट करके दिखा देती है कि हाँ कंसिस्टेंटली यही पैटर्न आता है, ठीक है. तो क्या लगेगा कि इसमें साइंस है. देखिए सवाल एक बात का है कि हम समझ रहे हैं कि पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा नहीं है अवेलेबल, लेकिन उस क्षमता में आपको लोगों को फेट है कि नहीं इसमें कोई दम है, क्योंकि इतने लोग ठीक हो रहे हैं हमारे आपके हाथ से ठीक हो रहे हैं. तो उसकी प्रिपरेशन में जो यूज किया आपने, जैसे रजाक साहब ने बताया कि कंट्री में भी आयुर्वेद वाली प्रोफेशन भी सेम मेथड से बनी, इंग्रेडिएंट को भी इस्तेमाल कर लिया, कोई हार्म नहीं है, कोई सारा कोई गुनाह नहीं है इसमें, ठीक है. लेकिन जब मिक्स करने के बाद क्या बना, उसका कुछ लोगों ने एनालिसिस कर रखा हो, चाहे लेबोरेटरी से, कॉमन लेबोरेटरी से कर रखा हो, मेडिकल कॉलेज की या यूनिवर्सिटी के लैब से, वो डाटा भी काम आएगा आपके. इसने 2-4 ने 10 ने भी कर रखा है, तो वो एक प्रूफ हो जाएगा कि आप फार्माकोपिया फॉलो करते हैं, उसी फार्माकोपिया से कंसिस्टेंटली जो लोग यहाँ भी बना रहे हैं वो गड़बड़ नहीं कर रहे हैं कुछ भी. और अच्छा जब कल का अगर सिस्टम रिकॉग्नाइज होता है तब तो आपको ड्रग टेस्टिंग लैब जो होगी उसने अंदर आपकी क्षमता वही करने की थी. मैं समझ रहे हैं आपकी बात, तो लेकिन ये आप सुझाव दिमाग में रखिए. हम आपकी आज तीनों मीटिंग्स में आपको आई टेल यू वेरी वेरी एमिनेंट पीपल लाइक प्रोफेसर गुप्ता हैज प्रेजेंटेड, प्रोफेसर दर्शन शंकर हैज प्रेजेंटेड, प्रोफेसर भूषण पटवाल हैज बीन देयर, बाकी तो मुझे सीनियर लोग नहीं देखे, डायरेक्टर एनआईटी हैज बीन देयर, सीएमआर की भी नॉमिनी है डॉक्टर रजनी कौल, आई आस्क्ड हर टू कमेंट एक्चुअली. तो ये इतने लोगों ने पार्टिसिपेट करके आपको मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बात का उत्तर उसी तरह से हो जो जजमेंट में शामिल हो सके. ठीक है. See, question is we want to help our people, we want to help, not it's not your case, it is a case of helping the people actually. अगर ये पैटी अफोर्डेबल ढंग से इतने लोगों के काम आती है तो साइंस को हम किल नहीं कर रहे हैं, हम आपको मदद कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट कर पाओ वैसे. थैंक यू. डॉक्टर रजनी कौल, डॉक्टर रजनी भी आप थे यहाँ पे, आपको अनम्यूट करना होगा डॉक्टर रजनी. वो चले गए, लगता गायब हो गई. डॉक्टर गंगवार आई वाज ज्वाइन किया था एएसएफ के सामने. अरे नहीं, डॉक्टर गंगवार साहब देवपुर का ऑफिस तो ऑन हुआ था शुरू में, उनका आपने देखा था उनको. हेलो सर. हेलो सर, मैं डॉक्टर के जोशी हैदराबाद से. हाँ बोलिए सर, बोलिए. आपको नमस्कार, पहले नए साल का मुबारकबाद. सर आप देखेंगे कि सिस्टम में आप कैंसर से लेकर के किडनी और हार्ट तक विदाउट साइंस के तो अच्छे नहीं हुए हैं, एंड इसमें मिरेकल साइंस है. और ये साइंस को जानने के लिए क्लिनिकल डाटा मैंने 30 इयर्स का कलेक्शन किया था और किया है, अभी मेरे पास प्रोजेक्ट है. मैं चाहूंगा कि अगर आप आदेश दें, अगर आप चाहें तो मैं क्लिनिकल डाटा रिपोर्ट के साथ में, और इवेंट कोविड का केस अच्छा होगा, माइंड कार्डियक अच्छा होगा, आप सब सबमिट करने को तैयार हैं.
लेकिन ये मिला नहीं। साहब डॉक्टर मसूद साहब, आप ये सारे गुलाम मसूद साहब, आप इसको इकट्ठा करके डेटा को जो आप सवाल पूछे हैं, आप एक फेडरेशन में आपकी जो ये पूरी एसोसिएशन बनी है, इकट्ठी मिलकर दीजिए बना के। जी जी क्यों दीजिए, शुक्रिया, बहुत अच्छा है सर। आई हैव टोटल रिजल्ट सर मेरे पास, किडनी से लेकर के हार्ट से लेकर के वो मसूद साहब। और जैसे देखिए आपकी जो बेसिक फिलॉसफी है सिस्टम की, डिजीज को क्लासिफाई करते हैं, जैसे पर्सनालिटी को क्लासिफाई करते हैं, उस हिसाब से कौन सी चीज को डेट किया गया, उसके क्या एविडेंसेस हैं, इसी तरह के एविडेंसेस दूसरी जगह भी उपलब्ध है। हम ये कह रहे हैं कि आप अपना डेटा लगाइए, लेकिन सारे इकट्ठे मिलकर डॉक्यूमेंट भी हो, उससे और मिलेगा उस डॉक्यूमेंटेशन के साथ। हां, दैट्स व्हाट वी आर फर्स्ट सर। इतने अच्छे कंपनी को अगर इतने अच्छे लोग अच्छे नहीं होते तो हम 40 साल से कैसे सरवाइव कर रहे हैं, और आप माने या ना माने मैं पूरा रिपोर्ट सबमिट कर सकता हूं। नहीं डॉक्टर मसूद साहब, इसलिए आप पूछ रहे हैं, इतने सालों से मैं 2 साल हो गए जिस सरकार ने हमें हम तो डॉक्टर नहीं कर सकते, हमें हम लोगों को बहुत कोऑपरेट किया, बहुत चांस दिया। जी जी। अब इस समय वी अलोंग विद आवर टोटल बॉडी स्टेटों के लोग आए हैं मेरा सर पूरा वॉइस सर को नहीं मिल रहा है, सो आई एम नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड यू सर। नहीं कोई बात नहीं, डोंट वरी, हमें मुझसे चाहिए आप एकदम भेजिए साहब। सर सारे रिपोर्ट आपको सबमिट कर देंगे, 30 साल का डाटा करेंगे सर। जरूर करिए मोस्ट वेलकम। ये साहब मेरा साहब तो कोई स्टेटों से लोग आए हैं जो स्टेट इन्वाइटेड है। मसूद साहब अपना ऑफ कर लीजिए, अभी मुझे आप रिटर्न में दे दीजिएगा, ये स्वास्थ्य प्लीज सर अपने इंप्रेशन दीजिए सर। मुझे लगता है जिस तरह से आपने कंडक्ट किया, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, बहुत अच्छे से इनको बड़ा सारा चांस दिया है। थोड़ा बहुत साइंटिफिक एविडेंस तो बाद में बहुत सारा निकलेगा, लेकिन पहले तो खुद तो इनको आधार देना पड़ेगा कि दे हैव द बेसिक रिक्वायरमेंट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सर्टिफिकेट बनता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक और चांस इनको देना चाहिए। ठीक है, even if they ask for 1 year to collect the data that you have asked them, आपका नक्शा बिल्कुल सुझाव करेक्ट है। अब आप वही इनको चांस दे रहे हैं क्योंकि वो चैप्टर क्लोज करना नहीं चाहते, क्योंकि इसका 2003 में बंद कर दिया गया था। हमें लगा नहीं इसमें दम है, कुछ इसको बंद नहीं करना चाहते। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर रजनी, प्लीज डॉक्टर रजनी को ऐसे मार अभी क्या। गुड आफ्टरनून सर। रजनी, डॉक्टर रजनी सर आपको हर जगह से कॉम्प्लीट कमेंट मिली। Sir, actually we have seen their proposal since 1999. Initially when the standing committee of experts was set up by Ministry of Health and Family Welfare. Since then we have been getting data from these organizations every quarterly or like that. And in data also so many
वेस्ट बंगाल से कनेक्शन है, वेस्ट बंगाल से? Yes, sir. I'm from West Bengal. I'm authorized to attend the meeting. Dr. sir, welcome. Am I audible? Dr. sir, welcome. Sir, I 100% agree with you. But the collection of data and evidences and nowadays is very important. And I also attended the last meeting. That was not virtual meeting. And at that time also they produced a few data, but we required also any paper, any evidence-based, any publications of in any peer-reviewed or any index journal. This is also the collection of all the individuals. They are their voluntary association. They can make a huge amount of clinical data. That may be the very basic one, but that is very urgently required because since now it is so. Well, I agree with you, sir. And but I said also you just give emphasis also on the publication, because whatever publication they send to us, most of that was not in the reputed journals or index journals. Most of the publications. So publications in a good journal, it also matters. थैंक यू डॉक्टर साहब। तिवारी जी एक बात है, आप हमारा कमेंट सुन लीजिए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं दोबारा आपको बड़े ये मैसेज करता हूँ। एक तरीका है शॉर्ट टर्म, जो डॉक्टर स्वस्ति चरण को मैं भी इनवाइट करूंगा टू टॉक। एक जो चीज है, जैसे जब तक आपके अच्छे जनरल नहीं बन पाते, मैं तो अभी कहूंगा कि आपके सभी इकट्ठे मिलकर अच्छा जनरल चलाओ, जिसका अच्छा एडिटोरियल बोर्ड बनाओ, और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो एलोपैथी के भी टॉप लोग हैं, जैसे पुष्प भाई के गुप्ता है, दूसरे पटवर्धन है, ये लोग शामिल होने को तैयार होंगे अगर वो जनरल प्रॉपर्ली चलता है तो उस वाले जनरल की प्रॉपर पेपर रिव्यू होंगे, पेपर आपके डेटा को प्रेजेंट करने का तरीका भी मांगा जाएगा। वो करने के लिए मैं मान लो कि चलो जो जिस तरह से लोग क्वालिफाई हुए हैं वो दे मे नॉट बी एबल टू राइट देमसेल्व्स, लेकिन आपके साथ एलोपैथ वाले दोस्त हैं, आपके साथ पार्टनर्स हैं, कई आपकी एसोसिएशन काउंसिल्स में वो मेंबर भी हैं, तो वो पेपर लिख सकते हैं। वो पेपर लिख के रिप्यूटेड जर्नल में जा सकता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, एक्यूपंक्चर के ऊपर इतनी रिसर्च हुई है, वो एलोपैथ्स ने करी है, चाइना से चला या इंडिया से अपने मेथड से चला, लेकिन वो यूज किसने किया? वो तो एलोपैथ्स ने यूज किया, और पेपर कहां छपे? एलोपैथी के जर्नल में छपे। तो आपकी वाले पार्टिकुलर चीज का जो रजनी कौल जी ने, आईसीएमआर वाले ने भी बोला, वो चीज क्या है? अगर मान लो एक टाइप का सिंड्रोम है और वो बहुत सारे लोगों में है, आपकी एक वाली पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन डालने से कितने लोग ठीक हो गए, और वो अगर साथ में एलोपैथ भी मेंबर आपका दोस्त, और वो किसी अच्छे इंडियन जर्नल में छपता है, ये इंटरनेशनल जर्नल में छपता है, पीयर रिव्यूड है, जो इंडेक्स्ड है, ठीक है, चाहे उसका कोई इम्पैक्ट हो ना हो, लेकिन प्रॉपर जर्नल है वो, तो वो वाला कल आपके लिए एक रास्ता बन जाएगा। वो एंड में उस रास्ते पे आपको चलना ही पड़ेगा, मैं आपको बताऊं, कुछ साल तक। ये जो दूसरे प्रोसेस है, पॉलिटिकली पुश करना, लीगली केस लड़ना, ये सब बातें अलग है एक्चुअली। अच्छा, वो उसमें हम नहीं कह रहे किसको क्या करना है, लेकिन अगर इस वाली नेफ्रोपैथी को कल जीवन देना है आपको, ठीक है, तो वो वाला पास जो डॉक्टर साहब ने, जो वेस्ट बंगाल से कोलीग ने मैसेज किया, मैं आपको रीइम्पेट कर रहा हूं, वो आप कोलिशन तौर पे बना दो। स्वस्ति चरण जी ने भी पिछली बार एग्जांपल रखा था ये, कि आप दूसरों के साथ चल दो पहले। आप यू मे नॉट गेट द इंडिपेंडेंस इन द बिगिनिंग, बट देन यू आर वर्किंग इन पार्टनरशिप। जब पता लगेगा यार ये पार्टनर के साथ मिलकर पेपर छापा है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, एक आयुर्वेदा वाले के साथ छापा है, या होम्योपैथ वाले के साथ पेपर छापा है, या एलोपैथ वाले के साथ पेपर छापा है आपने, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और that is, I tell you, that is the only wonderful starting way to do the things in the beginning. और शुरू में जैसे अपना जर्नल भी आप चलाओ, तो उस जर्नल में भी पेपर इस तरह के छापो जिसमें कोलिशन टाइप के पेपर हो, ठीक है, कोई किसी को डाउट नहीं करेगा उसके ऊपर। जो डॉक्टर साहब का वेस्ट बंगाल से वन ऑफ द वेरी नाइस पॉइंट व्हिच केम, यू नो, व्हिच I didn't emphasize in that solid term, but he gave a very nice example. ये करेंगे तो आपको कोई बोलेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है ना? तो अभी उत्तर नहीं देना, हम आपको सुझाव दे रहे हैं कि आप प्लीज स्टार्ट डूइंग दैट वे एक्चुअली। Thank you sir for the valuable the ideas given by our respective members. So sir, please give us some more time. We will देंगे और बड़ा आपकी क्लियर कट गाइडलाइंस भी देंगे, जिससे कि आप उसको प्रेजेंट वैसे कर सको। ओके, थैंक यू। डॉक्टर स्वस्ति चरण जी बोल रहे थे, वो चलेंगे फाइनली। I'm here, sir. हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। Thank you, sir.
from last year, we have had some progress with the representations from the different members of the organization, but we still have a long way to go. As advised by you, sir, I would also agree with all the suggestions given by all the members. We need to put our case together very strongly. If I were one of the members, what I would do is I will prepare a checklist of all the suggestions that have been made by all the members here, and then I'll try to collect all the evidences, all the information, all the case studies which are available with individual practitioners of the proposed PETI, because till now I see that it is very individualistic. Many of them are giving individual testimonies, but collectively it is yet to be available in a common platform. And then after I collect all these case studies and available literature or whatever case studies that we individually have, we would then organize it into in a uniform manner. And then the other thing which I would do is, whether we like it or not, it is always going to be compared with the established systems like allopathy and Ayush. For that matter, Ayush is easier to be compared with, but at least it will be compared to Ayush. So whatever is available with any of the Ayush system, be it homeopathy, be it Ayurveda or Unani or Siddha, we should organize the available information that we have for this PETI and see where we are lacking or where we are having more, and then try to present the case like that. Otherwise, it is very individualistic, and we are basing on assumptions that this practice is helping, and the scientific rigor is still lacking. So we need to organize that. I would request the members to organize the findings and present in that manner. Thank you, sir. Thank you, sir. Very nice, excellent comments you made last time also. And those comments at that time had hit my brain also very clearly, so I always remember them. Because you're very open, you're very, I think, inclusive, but you were very objective also. So I appreciated you last time also, and I think this time also you reiterated the same. और इन लोगों को करना ही पड़ेगा, रास्ते पे चलना है। अगर इसको चाहते हैं कि सिस्टम ये लोगों के तक पहुंचे और ऑर्गेनाइज सिस्टम रहे, क्योंकि देखिए मैं इनको जो मेंबर्स हैं जो आज थे आए वो सारे सभी को बताना चाहिए बात लास्ट टू कंक्लूड there is no way I tell you, because the cry in the public is something which is not recognized, should not be there. So they have a very limited time, I tell you, maybe this year maximum. क्योंकि जैसे एक हाई कोर्ट ने डिसीजन किया, अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी पास कर दिया कि यार जो रिकॉग्नाइज नहीं उनको बंद करो, तो बिल को ग्रो करने का भी चांस नहीं मिलेगा. तो they have to move quite fast on collecting the data in a proper format, which syndrome by, which disease classification by, and then then to show कि कोई गड़बड़ भी नहीं हुई है और डेटा वेरीफाइबल है. तो हर चीज का जो चीज है वो maybe basic one may not be very impacted by the great journals, actually big journals, लेकिन कुछ तो चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए. और उसके बाद फिर जो वो डॉक्यूमेंट छप जाते हैं, इनके मोनोग्राफ छप जाते हैं, कुछ बना के डॉक्यूमेंट ले आते हैं ये, which they present, that give them the time to grow actually. But I think जो आपकी last time की suggestion थी, they should try to grow along with others, to start with, and then they compare with others also. क्योंकि अभी तक इनका अपना आधार नहीं बन पाया और इनका ना तो कोई इतना इनको मीडियम भी नहीं है जहाँ ये छाप सके अकेले अपने आप पे, और साइंटिफिकली वो लेवल नहीं है जिसपे कोई दूसरा एक्सेप्ट करे इनको. So they have expertise, they have experience, but that's not documented actually, that we are not able to pass any judgment on that. भाई गुप्ता जी बोलेंगे सर. रसा आवाज नहीं सुन रही है आपकी. सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपकी अध्यक्षता में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इनको अपने डू एंड डाई अपॉर्चुनिटी को में अपने आप को सर्वाइव करने की. आपने बड़ा अच्छी तरह से बताया. फॉर देम दिस इज अ डू एंड डाई अपॉर्चुनिटी. आइदर यू विल बी फोर्स्ड टू क्लोज डाउन द सिस्टम बाय कोर्ट और बाय द, but this committee is so much inclined that we can support and how can we put you into
टुडे, ये सच है कि आपके पास बहुत अच्छे साइंटिफिक जर्नल में पब्लिकेशन नहीं है, बिकॉज दैट वाज नॉट डन, फैसिलिटी नहीं थी, सिस्टम नहीं था। अब आपको ओवरनाइट हम कहें आपसे कि आप साइंटिफिक हाई स्टैंडर्ड जर्नल में पब्लिकेशन ले आओ, वो आप कर नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। नाउ व्हाट इज टू बी डन इन ए वेरी टाइम बाउंड मैनर? तो मुझे लगता है कि ऐसा करें, आप 1 2 3 4 में बताऊंगा। आप एक ब्रेन स्टॉर्मिंग 2-3 करें, अपने सारे एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करें हिंदुस्तान से, उनकी लिस्ट बनाएं कि कितने लोग आपने जो पास आउट किए हैं, इसमें लिखा, मैंने किताब में देखा, इतने इतने पास आउट है, उनकी पूरी लिस्ट हो आपके पास, वो क्या कर रहे हैं। तो एक आप कुछ लोगों को काम दे दीजिए, व्हाट दे आर डूइंग, वेयर दे आर प्रैक्टिसिंग। फिर एक आप करें, एक 2-3 वर्कशॉप करें, उसमें आप ये डिसाइड करें कि आपको 3 महीने में कौन सा कैसे डॉक्यूमेंट बनाना है इस कमेटी में रखने के लिए। अभी जो डॉक्यूमेंट बनाया, ये डॉक्यूमेंट इतना, मतलब हम कहेंगे इनएफेक्टिव डॉक्यूमेंट है कि इसमें कुछ है ही नहीं। तो आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट में आप बनाएं कि आपके कितने साल से क्या आपकी स्ट्रेंथ एरियाज हैं, कौन सी बीमारी, कौन सा इन्वेस्टिगेशन, और फिर उसके बाद आप दिखाएं कि किस किस बीमारी में कितने लोग अभी तक कंपाइल करके ठीक हुए, कैसे ठीक हुए, उसका जो भी आपके पास मापदंड है आप उसको उसमें लगाएं। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने इंडिविजुअल केस रिपोर्ट को महत्व नहीं दें। इंडिविजुअल केस रिपोर्ट को लेवल ऑफ एविडेंस में सबसे नीचे माना जाता है, उसके बाद में केस सीरीज आता है, उसके बाद में मेटा एनालिसिस आती है, उसके बाद में हाइपोथेसिस पे थीसिस आती है। तो ये एविडेंस करते करते आप उसमें बताएं कि कितने आपके पास केस सीरीज हैं और किस किस सिस्टम में, डिजीज में, फिर कौन कौन से ह्यूमन रिसोर्स आपके पास हैं, कितने आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। तो इसका हर एक का एक डिफरेंट चैप्टर बना के फिर उसके बाद आपका विजन क्या है नेक्स्ट 10 साल में, क्या सोच रहे हैं आप, फिर आप बताएं इसमें रिसर्च अपॉर्चुनिटीज क्या है, फिर आप उसमें एक चैप्टर बनाएं कि इंटरपैथी साइंटिफिक कोलैबोरेशन क्या क्या हो सकता है। तो मतलब इसी को एक इतना पैकेजिंग करने की जरूरत है। आपका पैकेजिंग तो है ही नहीं, आपके पास मटेरियल पड़ा हुआ है इधर उधर छितरा छितरा, वो आपको कंपाइल करना है, पैकेजिंग करिए, फिर केस बनता है उसके बाद। वो सर, थैंक यू प्रोफेसर गुप्ता जी, आपने तो बहुत ही अच्छा, बड़े सुंदर शब्दों में इसको मेरी बात को मैं तो इतना अच्छा जोर से नहीं रख पाया, लेकिन आपने इतना अच्छा इतनी ब्यूटीफुल समरी दी है कि आई एम रियली एनएमर्ड बाय योर बिल्कुल कैपेसिटी टू स्टिमुलेट, वंडरफुल एक्चुअली। नहीं डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया आपने। आई थिंक दे वोंट बी एनी कंफ्यूजन टू देम नाउ एक्चुअली। ये और कौन रह गए? मीना जी बोलने के कुछ रह गए, कोई स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आप थे? सर दिल्ली से प्रियंका शर्मा जी। हाँ ब्रजेश शर्मा जी नमस्कार, बोलिए। आप तो आपका नाम दिख रहा था मुझे, आपकी शक्ल भी दिखी, लेकिन फिर हाँ अभी है, आप बोलिए डॉक्टर ब्रजेश शर्मा जी। हाँ सर नमस्कार। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। हाँ सर ऐसा है कि नमस्कार सर, सब लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है और बहुत अच्छी क्वेश्चनिंग हुई है। जब तक इसका वैलिड आंसर, सॉलिड आंसर हमारे पास नहीं आ जाते, कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं होती है, तब तक आई थिंक इन लोगों को चाहिए कि ये पूरा इस पर अपना फोकस करें, ताकि अगर ये एस्टेब्लिश करना है सिस्टम, तो इन लोगों की पूरी कंट्रीब्यूशन के साथ हम फिर इसको साइंटिफिक पैरामीटर पर असेस करें। मेरी यही रिक्वेस्ट है सर। बिल्कुल ब्रजेश शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक वेरी नाइस कमेंट, वेरी फोकस्ड कमेंट, वी अप्रिशिएट दैट। आई थिंक जैसे ही आप इनके जवाब में आज सभी की तरफ से एक बात कॉमन मैसेज दिया है, और डिफरेंट भाषा में, लेकिन बड़ा कॉमन मैसेज किया है। आई थिंक नाउ इन लोगों ने, टू बी वेरी फ्रैंक, इन्होंने कोशिश की है, इंप्रूव करने की भी कोशिश की है, अपने तरफ से इकट्ठा करने की भी की है, लेकिन तिवारी जी वो कोशिश उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई है पहले जिस लेवल पे चाहिए थी। तो आज आई थिंक आज की इंटरेक्शन इज बीन अमंग द बेस्ट इन द मंथ द थ्री। पहले वाले भी दोनों बार कोशिश की गई थी, लेकिन आज आई थिंक आप लोगों से भी बिल्कुल वेवलेंथ भी बड़ी अच्छी बन गई है, सबको बता पाए अपनी बात, आप भी अपनी बात रख पाए हैं। तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू डू इट एक्चुअली।
बिकॉज जैसे यस आनंद शर्मा जी से जोड़ दीजिए, राजस्थान से जोड़ दीजिए। हाँ सर नमस्ते। नमस्कार शर्मा जी, नमस्कार शर्मा जी। सर बहुत बढ़िया डिस्कशन, पहली बार मैं आया हूँ आज इस मीटिंग में, और हमारे यहाँ पर अप्रैल 2018 में इलेक्ट्रोपैथी को असेंबली में रिकॉग्नाइज किया एक एक्ट को। इसके बाद में इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आगे जो प्रोसेस होना था उसमें गवर्नमेंट ने एक बार से एक कमेटी बना दी, और उन्होंने जो सारे डिस्कशन अपने हो रहे हैं वही पॉइंट उस कमेटी के सामने रखे कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं इस सिस्टम के लिए, उन क्वेश्चंस का ये आंसर एक कमेटी देगी। तो हमने इसके लिए अक्टूबर के अंदर मीटिंग की है, और इनके कुछ प्रतिनिधि हमारे पास आए थे सर यहाँ पे, तो उनसे हमने यही क्वेश्चंस किए हैं जो आज हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, उनके सारे डाटा और एविडेंस के साथ में आने के लिए उनको बोला है। तो सेकंड जो भी मीटिंग होगी तो वही एविडेंस की बात हम कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं सर, उनके थ्रू अगर वो हमारे पास लेके आएंगे तो हम फर्दर आगे गवर्नमेंट को उन एविडेंस के साथ में आगे की कार्रवाई करने के लिए देंगे सर। अनिल शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली और रियलिटी में इससे मुझे और क्या दिखा, आज की जो गवर्नमेंट ने असेंबली से पास किया वो गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति थी एक सिस्टम देने की, लेकिन उसके अंदर मटेरियल वो चाहिए जो हम ढूंढ रहे हैं नेशनल लेवल पे। बिल्कुल राइट। आई थिंक तो जो आप इकट्ठा करें और आपके जो डेलिब्रेशंस हो उनका हमें पिक्चर में रखिए, डीएचआर के भी नॉमिनी को इनवाइट करते रहिए उसमें। जी सर। तो डिपार्टमेंट हेल्थ इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इनके ज्वाइंट सेक्रेटरी को और डिप्टी सेक्रेटरी को इनवाइट करते रहिए साथ में। तो इनका कोई तो आपकी जो जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे इनको भी पता रहेगा, जो हम प्रोग्रेस करेंगे तो आप हमारा हिस्सा देंगे, तो आपको हम हमेशा इनवाइट करेंगे अगले फ्यूचर मीटिंग्स में भी। लेकिन हमारे जो भारत सरकार का जो हमारा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग है उसको भी साथ इनवाइट रखिए ताकि दे नो व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है। तो मुझे जो लग रहा है ये लग रहा है कि जैसे असेंबली में तो पास तो कर दिया था, लेकिन उसके बाद जब एजुकेशन का मैटर है तो शायद गवर्नमेंट के दिमाग में वो आपके यहाँ जो चल रहा था वो भी रहा होगा, इसीलिए उन्होंने एक बार कमेटी फ्रेम की है सर। और इसी चीज को एक वैलिड वे में करें, और एक्चुअल जो नीड है, जिन डेटा की नीड है जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं, वो उन्होंने रिकॉर्ड किया है सर। तो इसको हम करके आगे काम करेंगे सर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू अनिल शर्मा जी, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, वी अप्रिशिएट दैट, वंडरफुल। तो मीरा जी फिर खत्म हो गई चर्चा, सबको धन्यवाद। गुप्ता जी धन्यवाद, सुशील चंद जी धन्यवाद। थैंक यू भाई गुप्ता जी, नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार सर, नमस्कार। हम तो आपको देखिए एनर्जी मिल जाती है। Thank you, sir. All the respected members, thanks for giving me us support and the guidance. We will definitely achieve one day. Thank you. Thank you. All the best. All the best. Best wishes. नमस्कार सर, नमस्कार सब लोगों को। वो तूने रिकॉर्डिंग केवल अपनी अपनी करनी है। नहीं